Thank you for, in fact, joining me live on the broadcast. Now, let's shift our focus to the controversy that's brewing due to the sellout of the Himachal Bhavan in the national capital. The Himachal Pradesh High Court has ordered the attachment of the Himachal Bhavan in Delhi after the state government failed to pay 64 crore rupees in dues to the Selhi Hydro company. During the hearing, the court ordered the Congress-led government in the Hill state to pay an upfront premium to the company along with the 7% interest. It asked the Principal Secretary of the Energy to conduct a probe within 15 days to find out about the involvement of officers in the non-payment of dues and recover the amount from the persons. The court has scheduled the next hearing for December 6th. The controversy of selling out of the Himachal Bhavan has in fact garnered reactions from the BJP as well, where it is in fact being targeting against the Chief Minister of Himachal Pradesh, Sukhwinder Singh Sukhu, for not being able to manage the affairs of the state. While the Delhi's Himachal Bhavan faces potential auction over unpaid dues by the Himachal Pradesh government, it remains to be seen how exactly the sellout will look like. This is situated, the Himachal Bhavan is situated in the national capital's Mandi House, where in fact a lot of meetings and the election commission's related meetings have also taken place of the Congress. All right, joining me live on the broadcast is my colleague Mehendi Garg. Mehendi, the Himachal Bhavan of, in fact, the Mandi House faces potential auction threat. This is the Selhi Hydro project case which we are talking about, and the allegations on the Congress's Sukhu government in Himachal Pradesh is that of mismanaging the affairs of the state. Now, the Himachal Pradesh High Court has also ordered the attachment and potential auction of the Himachal Bhavan. What is the BJP now maintaining its stand over as far as the financial crisis in Himachal Bhavan is concerned? Well, indeed, Simran, this can be seen as a major setback for the Sukhu government, for the Congress, the government of Himachal Pradesh, because right now we are at Himachal Bhavan, which is situated in the Mandi House area, and it has been said by the Himachal Pradesh High Court to have this property in auction right now. If we talk about the reasons behind it, then it is a major financial crisis that is being observed in the Himachal Pradesh state, and also the war of words and the politics have escalated regarding it, because the BJP's former Chief Minister Jairam Thakur has also issued a statement and has targeted the Congress party along with Sukhu government and along with Rahul Gandhi for not taking care of the state properly, and he have also accused the Congress party for not doing good things, and the major projects that came for the Himachal Pradesh government not to take care of that also properly. So you can see that Himachal Bhavan is here, and right now it's under auction, and the amount, if we talk about the amount, that it is around 150 crores, which was earlier 64 crores, but as it was not paid, then including the 7% interest, it has been reached to the level of 150 crores, and the Principal Secretary of the Power Department has also been informed by the High Court to conduct a fact-finding committee and to understand the situation behind it, and also what were the reasons due to which the Sukhu government was not able to pay this amount, the 64 crore amount, which has been raised up to the 150 crores. So yes, this can be observed as a major setback, and after the fact-finding committee's reports, it will also be decided that who will to be blamed, because it has been said by the High Court that the officials whosoever are involved in this will also be, there will be strict actions against them also, and this is a major setback, and the war of words have escalated. The BJP's MPs are also, attacking the Rahul Gandhi, the Congress government, and also, Sukhwinder Singh Sukhu for not, paying this kind of amount, and not only that, this is a very important. All right, Mehendi, I'll request you to kindly stay on with me on the broadcast while we also get my
colleague Anurag Sharma from Himachal Pradesh to give us more details about what is this Selli project, and 64 crore rupees is what we are talking about at this point of time. The 64 crore rupees was owed to Moser Bayer, who in fact the firm that had won the bid to build the Selli Hydro project in 2009, and this is in fact the region which is going to be now attached after the High Court. High Court had mentioned it even in the verdict, and this is now Himachal Bhavan, which we are talking about, which has served as a heaven for the top dignitaries of the Himachal Pradesh in the past, including the governors and chief ministers of the state. All right, Anurag Sharma, what is this entire financial crisis that Himachal Pradesh is currently reeling under? Because when we talk about this recent incident, this is the sellout and the auction of as much as 64 crore rupees that we are talking about. But before that also, the salaries were not paid in the state, and there seems to have in fact a complete crackdown in the state as far as the financial management of the decision in the state is concerned by the Congress-led government. देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 64 करोड़ रुपए का जो बकाया राशि थी, ये एक दिन की बकाया राशि नहीं है। बड़े लंबे समय से अगर हम बात करें, ये पेमेंट जो थी वो रुकी हुई थी। अगर हम बात करें 2009 से जो ये कंपनी थी, इनको लाहौल स्पीति का जो एरिया था उसमें इन्हें जगह मुहैया कराई गई थी और प्रोजेक्ट लगाने के लिए वो किया गया था। परंतु 2017 तक आते आते उनकी स्थितियां बिगड़ती गई और उनका जो पैसा था वो भी फोरफिट कर लिया गया। अब जो आज की स्थिति अगर हम बात करें, सुखविंदर सुक्खू सरकार और उनके आला अधिकारी जो ये कहते हैं कि ये काम जो है ये केवल और केवल 2 या 3 महीने या 2 साल का नहीं है, ये लगातार पीछे से खिंचता हुआ आ रहा है। सारे पैसे जो है आज जयराम ठाकुर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, या और जो अन्य पार्टियां, या शहजाद पूनावाला ने भी उस पर काफी कुछ कहा, तो उस पर उनकी ये टिप्पणी थी कि कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो अपने किए हुए सारे काम जो है वो हमारे ऊपर थोप गए। जिस तरह से सुखविंदर सुक्खू ने पहले भी कहा कि पहले की जो 10,000 करोड़ की देनदारियां थी वो भी थी, अब ये 64 करोड़ की एक नई देनदारी जो है हिमाचल में आ रही है। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल की स्थिति बिल्कुल बुरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, नए कोई डिप्लॉयमेंट नहीं हो रही है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। परंतु अगर हम आज की स्थिति, आज की सिनेरियो को देखें तो हाई कोर्ट ने बिल्कुल ये जवाब दे दिया है कि किसी भी सूरत में भले ही इनकी प्रॉपर्टीज को कुर्क करके जो है वो प्राइवेट कंपनीज या जिसको भी देनी है वो पेमेंट्स की जाएं, तो इस तरह की स्थितियां जो है वो उत्पन्न हो रही है। हालांकि सुखविंदर सुक्खू सरकार ये भी कह रही है कि अभी जो है वो हम इस पैसे को अभी पहले जांच करवाएंगे, जांच करके जो भी पैसा होगा वो हम देने को तैयार हैं। तो इस तरह की अभी बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि अभी बड़ी जल्दी होगा इस बात को कहना, क्योंकि उन्होंने भी 15 दिन का टाइम मांगा है। तो अगर आपने देखा होगा, ये इस 15 दिनों के अंदर जो है वो मांगी है इसके लिए डेट जो है, तो इस तरह से 6 दिसंबर की अगर जो है वो डेट दोबारा लगी है, उस पर देखना बनेगा कि अब जो है सरकार क्या फाइल करती है और किस पर जो है किस तरह का माहौल जो है वो रहने वाला है। जी, as my colleague in fact is giving me details that on 6th of December is what we can understand a follow up in this case, and on the day of 6th December we can understand what is going to be the future as far as the auction as much as of 64 crore rupees of Himachal Bhavan in the national capital is concerned in the alleged financial irregularities ongoing in the state. Thank you, Anurag, for giving me more details. Some political leaders have also reacted on this entire political controversy. Let's now listen in. देखिए, राहुल गांधी की खटाखट पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की वजह से और इकोनॉमिक्स की वजह से आज हम खड़े हैं, जो दिल्ली स्थित हिमाचल भवन, वो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि इसको नीलाम कर देना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार बिजली कंपनियों को उनका बकाया नहीं दे पाई है। इससे यही साबित होता है कि राहुल गांधी के खटाखट इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बंटा धार होता है। सोचिए, जिस हिमाचल भवन जो हमारे पीछे है, जहाँ कोई भी हिमाचल प्रदेश से आता है वो किसी से मिलना चाहता है, रहता है, जो हिमाचल प्रदेश की अस्मिता और गौरव है, आज उसको नीलाम करने की बात आ गई है। राहुल गांधी की इकोनॉमिक्स की वजह से हिमाचल प्रदेश के अंदर चीफ सेक्रेटरी को पैसे देने के नहीं है, उनकी इकोनॉमिक्स के वजह से हिमाचल भवन नीलाम हो रहा है, उनकी खटाखट इकोनॉमी की वजह से मिल्क सेस के कारण बिजली के दाम बढ़ चुके हैं, और चीफ मिनिस्टर इसी बात में पूरे समय व्यस्त रहे कि उनके समोसे को किसने खाया है। देश की जनता ने इसी खटाखट इकोनॉमी की वजह से, देश फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में पहुंच गया था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी।
मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, राहुल जी बचकानी हरकतें छोड़िए, थोड़ी सूझबूझ लाइए। आज आपकी वजह से ये हिमाचल भवन नीलाम करने की स्थिति में आ चुका है। जनता को बेवकूफ बनाना। देखिए, पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश तबाह किया वर्तमान सरकार ने, और जो नई पॉलिसी के नाम पर जिस प्रकार से हाइड्रो सेक्टर में जो कुछ इन्वेस्टमेंट भी आने वाला था और जो काम कर रहे थे प्रोजेक्ट्स में, सबके सब जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार से दुखी होकर के चले गए, छोड़ रहे हैं। और अभी भी जो प्रोजेक्ट जो है, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो हमारे MOUs हुए पड़े हैं, चाहे SJVNL है, SJVNL के साथ जो NTPC है, NHPC है, उनके साथ जो हमने पीछे जो एग्रीमेंट किए थे, उन पर भी प्रश्न खड़ा किया है। आखिरकार हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में जहां 45,000 मेगावाट हाइड्रो सेक्टर में जनरेट होती है, उसमें से 11,000 कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश का है। बहुत बड़ा एक हमारा आय का एक माध्यम है, एक आय का साधन है, वही समाप्त कर दिया, तबाह कर दिया, बुरी तरह से तबाह किया। ना पॉलिसी बन रही है, ना पॉलिसी बना करके उसको इंप्लीमेंट करने की स्थिति में हो पा रही है। और जो हिमाचल प्रदेश का जो नुकसान इन 2 सालों में हुआ है हाइडल सेक्टर में, जो ये कंफ्यूजन और बहुत ही एक तरह का एक क्योस जैसा जो खड़ा किया है, उसके कारण हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कोई भी काम सरकार करने की स्थिति में नहीं हो पा रही है, और इसलिए फजीयत के बाद फजीयत लगातार हो रही है। अब आप अंदाजा लगाइए, अभी हिमाचल प्रदेश में जो क्रम जो फैसलों का है, उसको अगर हम देखें तो एक के बाद एक फजीयत। और आज की ये तो हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा दुख का विषय है। यही कांग्रेस पार्टी का खटाखट मॉडल है। जहां पर भी कांग्रेस आई, हिमाचल हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, वहां पर लूट, बर्बादी और महंगाई लेकर आई। और लूट और बर्बादी इस प्रकार की छाई हुई है हिमाचल प्रदेश पर कि वहां पर सैलरी और पेंशन नहीं दे पा रहे टाइम से, वहां पर टॉयलेट पर टैक्स लगाया जा रहा है। जहां वादा किया था कि बिजली मुफ्त देंगे, हम आपको पानी मुफ्त देंगे, वहां पर बिजली पर कर बढ़ा दिया है, पानी पर कर बढ़ा दिया है। यहां तक कि इनकी प्राथमिकता केवल समोसों की जांच करनी है। पर हिमाचल प्रदेश की जो कंगाली करके रखी हुई है, इसके चलते अब हिमाचल भवन को बेचना पड़ रहा है। सोचिए, दिल्ली में हिमाचल भवन बेचकर जो बकाया है पावर कंपनी का 150 करोड़ रुपए, वो भरने की स्थिति आ चुकी है। मतलब सोचिए, जब से कांग्रेस आई है, हिमाचल को किस आर्थिक गड्ढे में लेकर गई है। सवाल ये बनता है कि केवल हिमाचल नहीं, कर्नाटका में भी झूठी गारंटीज के नाम पर और जो लूट मचाया है मूडा वाल्मीकि स्कैम का, उसकी वजह से वहां की भी तिजोरी खाली कर दी है। और वो तिजोरी खाली होने की वजह से कर्नाटका में ना इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा बचा है, न डेवलपमेंट का पैसा बचा है। तो कांग्रेस का केवल एक ही उद्देश्य है, जहां पर भी वो सत्ता में आती है, बड़े बड़े वादे तो करती है, पर वो वादे झूठे होते हैं, लूट मचाती है और उन प्रदेशों की तिजोरियां, क्योंकि राहुल गांधी को तिजोरी बड़ा पसंद है, तिजोरियां खाली कर देती। Now, viewers, the Himachal Pradesh High Court has ordered the attachment of the Himachal Bhavan in the Delhi after the state government failed to pay 64 crore rupees, and we have just heard the BJP hitting out at the Congress-led government of Sukhwinder Singh Sukhu in Himachal Pradesh for taking the dues to the Selhi Hydro Company, which is in fact putting up its project from 2009. A major embarrassment for the Sukhu government after receiving High Court's order that mentions outstanding electricity bill. Sukhu has said, haven't read the order yet, we will take the necessary steps. Let's now listen in to how Congress reacted of these controversies and to all the allegations that are coming from the BJP as far as this incident is concerned. हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है, इट्स ओपन सर, लेकिन नहीं कोई पढ़ा नहीं है। लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है, और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी तो उसमें उस ऊर्जा नीति में मैं भी मेन आर्किटेक्ट था, मैडम स्टोक्स उस समय ऊर्जा मिनिस्टर थे। तो अपफ्रंट प्रीमियम ये था कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। हाई कोर्ट का My colleague Anurag Sharma is back again with me on the broadcast. Anurag,
you are in Himachal and we have just heard सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि इस समय अभी ऑर्डर नहीं पड़ा है हमने, पर देखा जाएगा, ऑर्डर को रिव्यू करेंगे और नेसेसरी स्टेप्स लेंगे। बट एट द सेम टाइम हाई कोर्ट ने इशू कर दिया अपना ऑर्डर, और इसी समय पे जब ये पूरी कंट्रोवर्सी बड़ी हो रही, बीजेपी का लगातार आरोप लगाना ये है कि हिमाचल प्रदेश एक तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच दबदा शुरू हो गया है। कुछ ही पिछले महीनों में जैसे जैसे इंसिडेंट्स हुए हैं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो ड्यूज हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, वो सिर्फ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पर अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका इमीडिएट एक्शन क्या कोई हो सकता है 1-2 दिनों में? क्योंकि अगर हिमाचल भवन को बेचने की बात आएगी या हिमाचल भवन के ऑक्शन की बात आएगी, तो इसमें जो सरकार है क्या या जो कांग्रेस है, क्या वो कुछ भी स्टेप्स नहीं लेगी और जो ड्यूज हैं वो इसी को देकर ही निपटाएगी? नहीं, देखिए सिमरन, अगर सबसे बड़ी बात है कि 64 करोड़ अगर हिमाचल सरकार की बात करेंगे, एक बड़ा छोटा सा अमाउंट है। हालांकि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, सुखविंदर सुक्खू सरकार भी अभी इसको रिव्यू करना चाहती है। वो ये देखना चाहती है कि किस तरह से कितने कितने जो हैं वो लगे हुए हैं, कितना अमाउंट लगा हुआ है, क्योंकि उस पर भी बार्गेन रहती है कि किस तरह से होगी। क्योंकि सैली कंपनी ने सारे चार्जेस लगाकर सीए से कैलकुलेट करवाकर एक पर्टिकुलर अमाउंट बना दिया है। उस पे जो है वो वन टाइम सेटलमेंट जो है वो उस तरह से होगी, क्योंकि कोर्ट भी ये चाहेगा, क्योंकि किसी भी सूरत में, क्योंकि इस तरह का आदेश कि हिमाचल भवन को बेच कर देना वो एक प्रताड़ना के तौर पर देखा जा रहा है कि हाई कोर्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि किसी का भी पैसा जो है वो दबाया ना जाए। तो इस वजह से बीजेपी की जब तक बात कर रहे हैं, बीजेपी का बोलना बिल्कुल जायज है, परंतु जिस तरह से अभी की स्थितियां दिख रही हैं वो बिल्कुल सही है। सुखविंदर सुक्खू जिस तरह से कह रहे हैं कि लगातार ये कोई आज या 2 दिन या 5 दिन का नहीं है या 2 साल का नहीं है, ये जितने भी पीछे के डेट्स हैं, ये सभी जो डेट्स हैं ये लगातार पीछे से खिंचते हुए आ रहे हैं। 76,000 करोड़ तो जयराम ठाकुर छोड़ के गए थे, उसके बाद 30,000 करोड़ के करीब सुखविंदर सुक्खू ले चुके। तो आज की जो हिमाचल की स्थिति है सिमरन, वो एक दिन की बनी हुई स्थिति नहीं है और ना ही एक दिन में ठीक होगी। अगर आप ये देखोगे ओवरऑल, आप अगर स्थितियों को समझेंगे तो वो एक दिन में ठीक होने वाली समस्याएं नहीं है, इसको भी धीरे धीरे समय लगेगा और स्थितियां जो है वो डे बाय डे और ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं सुखविंदर सुक्खू सरकार जो है वो आर्थिक संकट में आज की डेट में घिरी हुई हमें दिखती है। तो अगर ये इस तरह की स्थितियां चली तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं हिमाचल को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा और स्थितियां और ज्यादा गंभीर हो जाएंगी। परंतु मैं फिर ये कहूंगा कि अभी जो है वो 8 दिसंबर का रिव्यू एक है, अभी सरकार के पास 15 दिन का टाइम मांगा है, तो सरकार ये कह रही है कि 15 दिन में हम रिव्यू करके इसके ऊपर जो भी बहस करनी होगी या जो भी स्टेप्स लेने होंगे वो लेंगे। और 64 करोड़ रुपया ये बिल्कुल तय है कि 64 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा, परंतु जिस तरह से स्थितियां दिख रही हैं वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है सिमरन जी। As you're also in fact saying that the kind of situation that's prevailing in the national capital is not looking in a nice spot. Thank you, Anurag, for giving us these details. Now moving on to track other development, at least 6 Bangladeshi nationals